નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार मित्रों, आज આપણે 16/4/2024 रोज ધોરણ 7 अंदर हिंदी विषयનું જે પેપર વાર્ષિક પરીક્ષાનું દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનું જે પેપર જે લેવામાં આવ્યું છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો તમે હજી સુધી જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો, જેના કારણે એમને પણ આ સરસ મજાના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન છે એ સરળતાથી મળી રહે। તો ચલો આપણે હવે આપણા પ્રશ્નો જે છે આપણને ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયમાં જે પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે એનો આપણે ચર્ચા કરીએ અને એને આપણે એના જવાબો સાથે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ। તો આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 1ની, જેમાં તમને નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर टूंक में दीजिए। तो पहलो प्रश्न है, मुख्य अतिथि को द्वार पर रोक कर देना सही था, क्यों? तो इनका जवाब आवश्य हाँ, उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था इसलिए। પછી चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो साधारण है, न गंधर्व सा गायक, न भीम सा बलवान, न बृहस्पति सा बुद्धिमान। ये इस तरह से परिचय दिया। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, निरक्षरता आदि। પછી मालोजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो ये प्रश्न છે તમારે તમારી જાતે લખવાનો છે। कौवा और मुर्गी कहाँ रहते थे? घर में दाना कौन लाता था? घर में कौवा दाना लाता था और वो घर में रहते थे और कौवा दाना लाता था। भारत ने किसे कल बुलाया, क्यों? भिखारी को कल बुलाया क्योंकि 1 रुपया भीख देने के लिए। एना પછી 7મો અને 8મો પ્રશ્ન છે એ તમારે તમારી જાતે, એટલે કે आपके घर में और पिताजी कितने बजे कहाँ जाते हैं? તમારે તમારી જાતે તમારા પપ્પાનું લખવાનું છે। आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं? એ પણ તમારે તમારી જાતે લખવાનું છે કે કઈ પ્રથાઓ તમારા સમાજમાં છે। ચલો એના પછી વાત કરીએ પ્રશ્ન 2bની કે બેટી क्या क्या बनने की अभिलाषा करती है? तो ये તમને ખબર જ છે, તમે કવિતાના આધારે સરસ રીતે લખી શકો છો। અને મનુષ્ય क्या क्या कर सकता है? तो ये પણ તમે તમારી રીતે એ કવિતાના આધારે તમે લખી શકો છો। નીચે दी गई काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो અહીંયા આપણે પહેલાનો ભાવાર્થ આપણે જોઈએ છીએ કે मैं पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। तो ये यहाँ कने આપણે भावार्थ लिखें कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो आ રીતના અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કે પ્રશ્ન પહેલાની અંદર તમને 8 પ્રશ્ન અની અંદર અને બીજા બીની અંદર 2 પ્રશ્ન આપેલા છે, જેના તમને કુલ 16 અને 4 ગુણ આપેલા હતા। તો આ જે પ્રશ્ન છે આ રીતના તમે એ પ્રશ્નનો જવાબ છે સરળતાથી લખી શકો છો। ચલો આપણે એ પ્રશ્ન 2ની વાત કરી લીધી છે કે જેની અંદર તમને અહીંયા ભાવાર્થ આપવાનો હતો। આપણે બાજુમાં ભાવાર્થ તમને સરસ રીતે આપી પણ દીધો છે, જેની આપણે વાત કરી લીધી છે। એના પછી આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 3ની કે 2 में से कोई एक अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। तो અહીંયા કને તમને 2 અપૂર્ણ કહાનીઓ આપેલી છે। આ કહાનીઓ જે છે એ કોઈ અહીંયા ફિક્સ ફોર્મેટમાં નથી, તમને જે યોગ્ય લાગતું હોય એ પ્રકારે તમે અહીંયા કને વાર્તા લખી શકો છો અને તમે જે રીતની તમને જે યાદ આવે, તમને જેવી રીતના સૂઝે એવી રીતના તમે અહીંયા વાર્તા લખશો તો પણ તમને અહીંયા કને માર્ક્સ છે એ મળવા પાત્ર છે, એટલે કે મળી જશે। તો તમારે એ વાર્તા તમે લખી જશે સરળતાથી અને આવી રીતના વાર્તાઓ લખવાનું તમે પ્રેક્ટિસ કરજો। ચલો એના પછી दिए गए 2 विषय में से कोई एक विषय पर पत्र लेखन कीजिए। तो पत्र પણ લખવાનો છે તમારે। 2 આપેલો છે તમને, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। અને બીજું છે जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो આ પત્ર પણ તમે તમારી જાતે, તમને બધાને પત્ર લખતા આવડે જ છે એટલે તમારે અહીંયા કને હિન્દીમાં આ બંને પત્ર છે એ લખી દેવાના છે। બંનેમાંથી તમારે કોઈ પણ એક વિષય ઉપર લખવાનું છે। તમારા મિત્રને પત્ર તમે સરળતાથી લખી શકશો। તમને ખબર હોવી જોઈએ પત્રની અંદર સરનામું ક્યાં આવે છે, સંબોધન કેવી રીતના કરવાનું હોય છે અને પત્રમાં કઈ કઈ વિગતો અને અંતમાં તમે તમારું પોતાનું નામ, એટલે કે લખનારનું નામ છે એ આપણે લખવાનું હોય છે, એ કઈ બાજુ આવે છે એ ખાસ ધ્યાન રાખી અને તમારે કહેવાનું છે। ચલો એના પછી પ્રશ્ન 5ની અંદર दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो પહેલો અહીંયા કને છે लड़की स्कूल जा रही है। तो અહીંયા કને શું આવશે? लड़का स्कूल जा रहा है। બીજું છે बंजारा बाहर गया था। तो यहाँ આવશે बंजारीन बाहर गई थी। आदमी खाना खाता है। तो यहाँ આવશે औरत खाना खाती है। चौथું છે सेठ अभी दुकान में आएंगे। तो यहाँ लखाओ सेठानी अभी दुकान में आएगी।
પછી પાંચમું છે ધोबी कपड़ा धोता है तो धोबीन कपड़ा धोती है। छठू है कुत्ता भोग रहा है तो यहाँ से कुतियाँ भोग रही है। चलो छठू है विशेषण छांट कर उसका प्रकार लिखिए तो यहाँ 3 मीटर कपड़ा दीजिए तो जवाब आवशे 3 मीटर और जवाब आवशे परिमाणवाचक प्रकार आवशे। चलो बीजो है नीम की दातून कड़वी है तो यहाँ कने कड़वी है ए विशेषण है और एनो प्रकार है गुणवाचक। चलो एना पछी रावण ज्ञानी था तो ज्ञानी है ए विशेषण है और गुणवाचक एनो प्रकार है। चौथुं है फूल सुगंधित है तो सुगंधित है ए विशेषण है और प्रकार है एनो गुणवाचक। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो कई अने एमां अहीं आवशे अनिश्चित संख्यावाचक। चलो सातवां प्रश्न है आपणे बात करिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से जिस शब्द में क्रिया का काल का पता चल रहा हो उस शब्द को रेखांकित करके उसका काल बताइए। तो मैं शिक्षक बनूंगा तो ये बनूंगा ए शब्दना नीचे लाइन आवशे अने भविष्यकाल एनो काळ थशे। बीजू छे राधा ने पत्र लिखा तो लिखा ए क्रिया छे अने भूतकाळ एनो आवशे। त्रीजू छे विमल गीत गा रहा है तो रहा है ए एनु क्रियापद छे अने आ रीतना तमे एने दरेकने अहींया कने लखी शको छो। तमने अहींया कने ख्याल आवी ज गयो हशे, छतां न ख्याल आव्यो हो तो विडियोने स्टॉप करीने तमे लखी देजो। नीचे दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तो नंदनवन से एक छोटा सा तालाब था तो अहींया नंदनवનમાં एक नानुं तळाव हतुं। तळावना ठंडा पाणीमां राजहंस रहेतो हतो, ते खूब सुंदर हतो। ते तळावनी बाजुमां ज એટલે આ રીતના તમને અહીંયા કને સરસ રીતે અહીંયા ફકરો જે છે આપી દીધેલો છે। पढ़कर उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप डायरेक्ट प्रश्न उत्तर की बात करिए कि धरती की शान कौन है तो जवाब आवशे मनुष्य। बीजो प्रश्न है मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है तो जवाब आवशे तूफान। और मनुष्य चाहे तो पहाड़ को क्या कर सकता है तो पहाड़ को फोड़ सकता है। नदियों के मुख को कौन मोड़ सकता है तो जवाब आवशे मनुष्य। और पांचमों से आसमान शब्द का विलोम शब्द काव्य में से लिखिए तो जवाब आवशे धरती। चलो एना पछी बात करिए 10वां प्रश्न में नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द के आधार पर कोई 2 चुटकुलों का निर्माण कीजिए। तो अहींया कने तमारे कर सोना और उत्तर एना चुटकुला बनावाना छे। एना आधारे तमारे अहींया कने जवाब छे एवो आववो जोईए तो ए तमारे चुटकुला तमारी जाते प्रयत्न करी अने बनावाना छे। एना पछी नीचे दिए गए भावपत्र को देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 11वां प्रश्ननी अंदर तमने अहींया कने एक भावपत्रक एटले के बिल आपेलू है और आ बिलना आधारे तमारे एना प्रश्नना जवाब है आपवाना है। तो अहींया तमे बिल है आखुं जोई शको छो। महाराजा इलेक्ट्रॉनिक्सनुं बिल है और कोना नामनुं छे तो पटेल श्रीकुमार भाईनो नामनुं बिल है। हवे आपणे प्रश्नना जवाब जोईए। उपयुक्त पर्चा कौन सी दुकान का है तो सौथी पहला ज आपने आपेलू है कई दुकाननुं छे तो जवाब है महाराजा इलेक्ट्रॉनिक्स। पर्चे में कुल कितने रुपयों की खरीदी हुई है तो जवाब आवशे 3445 रुपयानी। पछी पर्चे में सबसे महंगी वस्तु कौन सी है तो जूसर ब्लेंडर ये सौथी महंगी है। पछी पर्चे में बताई गई चीज वस्तु की सूची लिखिए तो इस्त्री ट्यूबलाइट जूसर ब्लेंडर बल्ब आ बधी एनी वस्तुओं है। चलो एना पछी किस वस्तु की गारंटी या वारंटी दी गई है अने कितनी तो होल्डर की गारंटी या वारंटी दी गई है अने 16 स्विच की दी गई है। 3 पिन प्लग है ए बधुं अहींया कने तमने आपेलू छे। 5वां प्रश्ननो जवाब जे छे नीचे आपेलो छे कि इस्त्री जूसर ब्लेंडर की गारंटी वारंटी दी गई है और 1 साल की। पछी पर्चे से सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है तो 3 पिन प्लग सबसे सस्ती है। चलो एना पछी आपणे बात करिए प्रश्न 12 नीचे दी गई समय सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टेलीविज़न प्रसारण की समय सारणी आपको यहाँ दी गई है। टाइम्स नाउ, मैक्सनी, स्टार प्लस की, सबकी, बिफोर यू म्यूज़िक यानी डिस्कवरी की, ये सब आपको दिया गया है। इसके आधार पर प्रश्न के जवाब हमें यहाँ देखने हैं। इस समय सारणी में आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है तो आ जे बधुं ज उपर बतावेलुं छे एनी अंदर तमने जे कार्यक्रम पसंद होय जे तमे जोता हो एने तमारे अहींया कने लखवानो छे। बीजू छे समाचार के लिए कौन सा चैनल है तो अहींया कने जवाब आवशे टाइम्स नाउ। स्टार प्लस पर कौन से प्रसारण प्रसारित होते हैं तो गुलाल और यह रिश्ता क्या कहलाता है। समय सारणी के कितनी चैनल की सूची दी गई है तो टोटल 5 चैनल की। 10 बजे कौन सा प्रसारण किस चैनल पर आता है तो 10 बजे डिस्कवरी चैनल पर फैक्ट्री मेड आता है। मॉर्निंग मसाला किस चैनल पर प्रसारित किया जाता है तो एनो जवाब आवशे बिफोर यू म्यूज़िक। तो आ रीतना तमने अहींया कने आ जे छे ई आखुं संपूर्ण सोल्यूशन छे ई आपणे अहींया कने जोई लीधुं छे। तो आखुं संपूर्ण सोल्यूशन आपणुं अहींया कने पूर्ण थाय छे। ज्यां ज्यां तमने एवुं लागे त्यां कने तमे विडियोने स्टॉप करी अने आ संपूर्ण सोल्यूशन छे ई तमे जोई लेजो अथवा तो विडियोने स्टॉप करी अने तमे नोंधपोथीमां उतारी लेजो तो तमने सरळताथी आ प्रश्ननो जवाब छे ई समजाई जशे। तो फरीथी एक वखत तमे जो हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो अने साथे साथे बेल आइकन पण दबावी देजो। चलो आपणे अहींया संपूर्ण सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। नवा विडियो साथे मळीए, त्यां सुधी तमे बधा मस्त रहो अने तंदुरस्त रहो।